Good morning, students. Today we are starting our new chapter, that is neural control and coordination. This is the sixth chapter of unit human physiology. So let's start with the chapter. See, we have already talked about various systems that are working in our body, and in each of the system there are different organs that are functioning. So each and organ is going to perform its specific function. But it is not the thing that each individual organ is not going to interact with the other organ. We have seen in a system, just like if we are talking about digestive system, then in digestive system we have seen that various organs, they are interacting with each other, and this interaction is helping in forming a proper system that is functioning. So exactly in the same way, there are different organs which are coming together, they are interacting with each other, and they are working in a coordinated manner. That means two or more organs are coming together and they are complementing their function. That is known as coordination. So one thing we need to understand is coordination. Coordination occurs between two or more organs. Although these organs are performing their definite functions, but still they are interacting with the other organs for a complete function to get performed. So two or more organs are interacting with each other and they complement their functions. This is coordination. And the second one is integration. The second term is integration. Here also two or more organs, they are coming together and integrating their function for one common single function. Suppose digestive system, so digestion takes place when all the parts of digestive system are functioning in an integrated manner. Why we need to understand these terms? Because our neural system is performing both the functions. Our neural system is involved in coordination and integration. Simply हम कैसे समझ सकते हैं? It simply means there is a control center in our body and that control center is regulating. It is coordinating and integrating all the organs of our body so that all the functions are going to occur in a definite, in a sequential manner, and that is being controlled by our neural system. So in this chapter we are going to study in detail about the neural system. In neural system we are going to talk about our brain, structure of brain, different parts of brain, the function performed by these different parts of brain. Then we will going to talk about spinal cord and the nerves that are arising from brain as well as spinal cord and what different functions these nerves are performing. So we are going to talk about everything. So what our neural function is doing? Our neural function is involved in two functions, और ये दो functions क्या है? These two functions are control and coordination and integration of the organs. So let's talk about our neural system. What our neural system is made up of? Our neural system is comprised of specialized cells. हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड वी कॉल दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स एज न्यूरॉन्स. और ये न्यूरॉन्स फंक्शन क्या करते हैं? द फंक्शन ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज टू ट्रांसमिट द मैसेज. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कैन टेक प्लेस इन टू डायरेक्शंस. ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ हो सकता है? द न्यूरॉन्स कैन ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द central nervous system. We will talk about central nervous system. It means brain and spinal cord. हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से कोई भी स्टिमुलाई आता है, वहाँ पर जो भी मैसेज है
वहाँ के रिसेप्टर्स उसको एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये न्यूरॉन्स उस मैसेज को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं. सो दिस इज वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द central nervous system. Now what happens? The brain is going to process that information. यहाँ से जो information pass on हुई है, brain उस information को process करता है. हमारे brain के पास कुछ previous experiences हैं, we know memory store होती है. So उन previous experiences के basis पे और जो current situation है, जो stimuli है, उसको process करता है. So it is going to process द इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस के बाद ब्रेन एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. मीन्स व्हाट शुड वी डू अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई. सो अगेन दैट मैसेज विल बी कैरिड बाय न्यूरॉन्स, बट डायरेक्शन अब क्या होगी? नाउ द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी की मसल्स और ग्लैंड्स, दे आर बिहेविंग एज इफेक्टर्स. बिकॉज फंक्शन कौन करता है? सपोज इफ आई एम टचिंग समथिंग विद माई हैंड, देर इज अ सब्सटेंस दैट इज वेरी हॉट. सो फ्रॉम द स्किन, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, स्किन इज सेंस ऑर्गन, द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, they are going to receive that stimuli. What is the stimuli? That is the hot object is the stimuli. और यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा? मेरे स्किन की सेल्स हैं, वहाँ से मैसेज न्यूरॉन्स लेके जाएंगे ब्रेन तक. ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करेगा और वापस से मैसेज कहाँ आएगा? मेरे हैंड की मसल्स के पास आएगा. बिकॉज मूवमेंट को कौन हेल्प करेगा? हैंड की मूवमेंट को मसल्स ऑफ द हैंड आर गोइंग टू फैसिलिटेट. इसलिए हमारी बॉडी की मसल्स क्या हैं? इफेक्टर हैं. सो द सेकेंड मैसेज इज फ्रॉम CNS, दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सपोज ग्लैंड्स किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे तो हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करेगा? ग्लैंड सिक्रीट करेंगे. अगर किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम मूवमेंट शो कर रहे हैं तो मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. सो दीज आर एक्टिंग एज इफेक्टर्स. सो मैसेज इज गोइंग टू कम to these effectors that can be glands or muscles. So this is how the message is moving in two directions. It is moving from sense organs to the CNS, central nervous system, and later on the processing of information is taking place in the central nervous system, and the message will come from the central nervous system to the effectors of our body. अगर हम ब्रेन का एक सिंपल सा डायग्राम देखें और वहाँ पर देखें कि मैसेज कैसे जाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर? सपोज इफ आई एम ड्रॉइंग दिस इज आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन में एरियाज प्रेजेंट हैं. सेंसरी एरिया, दिस इज द सेंसरी एरिया एंड दिस इज द मोटर एरिया. Here cerebellum is present. This is pons varolai, medulla oblongata, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है. सपोज आई एम मेकिंग, दिस इज माई स्किन एंड दीज आर द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन माई स्किन. सो दिस इज स्किन एंड स्किन receptors. So let's see how sensory neurons are moving. So we can see from here, suppose I am touching a hot object, then neurons are going to move from here. This will be the direction of movement. These are
sensory nerve fibers, or we can say sensory neurons. They are going to carry this information to this region of the brain, that is the sensory area. So in this direction, the sensory neurons are carrying the information, or you can say message, from the receptors of the skin towards the central nervous system, the sensory area of the brain. Now there are some association areas which is going to interpret this information, and later on from the motor areas, the information that is coming back from the central nervous system in this direction will be received by the effectors. Say our body's muscle cells, the muscles of our body, this is the muscle cell. So here the information is coming in this direction, and it will be the motor neuron. It simply means that we are having two type of neurons. The sensory neurons are going to carry the information from sense organs to the sensory area of the brain, and the motor neurons are going to carry the information from the motor area of the brain to the effectors of our body. So this is how the message is coming into the brain and coming out of the brain. This is how the neural system is functioning. If we talk about the neural system in some invertebrates or lower organisms, then some of the organisms like sponges, अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, वहाँ पर हमें न्यूरल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है. दे आर नॉट हैविंग न्यूरल सिस्टम. जब हम स्पॉन्जेस से आगे की तरफ मूव करते हैं, मीन्स वी आर कमिंग टू सिलेंट्रेट्स, एंड सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेट्स इज हाइड्रा. सो हाइड्रा में देर इज़ वेरी सिंपल न्यूरल सिस्टम. यहाँ पर सारे न्यूरॉन्स एक जैसे होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं. मीन्स अ सिंपल न्यूरल सिस्टम इज देयर. ऑल द न्यूरॉन्स आर सिमिलर एंड फॉर्म network. A net like pattern is formed. अगर हम उससे आगे की तरफ मूव करते हैं, we are coming to worms, platyhelminths. They are having another example, planaria. Here also in planaria there is very simple neural system. यहाँ पर nerve fibers के दो bundles present है. They are two bundles of nerve fibers, and these bundle of nerve fibers are joining together and they are forming the rudimentary brain, means not properly developed brain. So these are forming a rudimentary brain. If we further move to earthworm, insects, they are showing brain, means they are having a proper nerve ganglions are there, nerve fibers are present, brain is present, but it is simple in comparison to vertebrates. When we talk about primates like human beings, हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है इन ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में. स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था. इवोल्यूशन के टाइम पे द कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ बीन अचीव्ड and now the human beings are having the complex and properly developed brain. So lower organisms में न्यूरल सिस्टम बहुत प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते हैं, देयर प्रॉपर न्यूरल सिस्टम इज प्रेजेंट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरल सिस्टम और यू कैन से नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. अगर हम हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे
काम करता है. Means our nervous system plus the glands that are present, our endocrine glands, they are functioning together. So let's talk about the human neural system. We are going to talk about human neural system. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी आर डिवाइडिंग इनटू टू मेजर कैटेगरीज. वन इज नोन एज CNS and the second one is known as PNS. What CNS stands for? CNS stands for Central Nervous System. Central means which is centrally located. ये वो पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का जो हमारी मिड डोर्सल लाइन है उसके साथ अरेंज्ड है. सो हमारी मिड डोर्सल लाइन के साथ क्या अरेंज्ड है? अपर साइड में वी आर हैविंग द ब्रेन और अ लॉन्ग कॉर्ड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. We talked about brain and spinal cord, vertebral column basically, but also spinal cord a little bit when we were talking about skeletal system. So brain में we talk about that this brain is protected by a hard covering. अगर हम internally brain को देखते हैं that is a very soft organ, लेकिन इस soft organ को बाहर एक bony structure protect करता है that is very hard and that bony structure is known as cranium. So brain is protected by a hard bony box जिसको हम cranium बोलते हैं और spinal cord को भी protect करती है हमारी vertebral column. And this vertebral column is made up of various vertebrae. So these are the central parts of central nervous system which are protected by hard structures. Peripheral, the PNS stands for peripheral nervous system. This peripheral nervous, periphery means it is moving to all the parts of the body towards the periphery. What part is it is made up of? It is made up of all the nerves. और वो nerves कहाँ से arise होती हैं? These nerves are going to arise from brain and spinal cord. So peripheral nervous system is constituting of the nerves arising from brain and spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स अराइज होती हैं वो सब क्या बनाती हैं? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. अब जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं दोज नर्व्स आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स. हम उन नर्व्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स. दे आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन. और जितनी भी नर्व्स स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं we call them as spinal nerves. So we are having two type of nerves. Cranial nerves arising from the brain and spinal nerves they are arising from the spinal cord. Other than this, peripheral nervous system is again divided into further two categories. What these two categories are? These are the type of nerve fibers that are present in the peripheral nervous system. किस बेसिस पे हम इन नर्व फाइबर्स को डिफरेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैसेज. किस डायरेक्शन में ये नर्व फाइबर्स मैसेज को लेके जाते हैं इस बेसिस पे वी आर डिवाइडिंग दीज इनटू टू पार्ट्स. वन इज एफेरेंट नर्व फाइबर्स एंड सेकेंड इज इफेरेंट नर्व फाइबर्स. सिंपली हमने एफरेंट और इफरेंट की बात तब की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तब हमने देखा था दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर द ब्लड वेसल विच इज कमिंग
कैरिंग द ब्लड इन द बाउमन कैप्सूल, जो ब्लड को लेके आती है दैट इज द एफरेंट, और जो वहां से ब्लड को बाहर लेके जाती है दैट इज द इफरेंट वन। सेम थिंग इज हेयर, एफरेंट का मतलब है कि मैसेज को सेंस ऑर्गन से लेके जाना कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक। सो द नर्व फाइबर्स विच आर कैरिंग द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सारे नर्व फाइबर्स कैसे होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं जो मैसेज को सीएनएस की तरफ लेके जाते हैं। इफरेंट नर्व फाइबर्स में कौन आते हैं, विच आर कैरिंग द मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू द सेंस ऑर्गन्स, और यू कैन से इफेक्टर्स के पास जो मैसेज लेके आते हैं दे आर द इफरेंट वन। सो रिमेंबर वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस डायरेक्शन में मैसेज को लेके जाते हैं। नाउ अगेन दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन कि नर्व्स बॉडी के कौन से पार्ट्स में जाके मूवमेंट, और यू कैन से कौन से पार्ट्स तक मूव करती हैं। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हम हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ की बात करें तो सम पार्ट्स आर अंडर आर कंट्रोल, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हमारे कंट्रोल में हैं जिन्हें हम अपनी विश के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, सपोज आर स्केलेटल सिस्टम इज देयर। और बॉडी के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं लाइक आर इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। मीन्स कुछ बॉडी पार्ट्स वॉलेंट्री फंक्शन करते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी बेसिस पे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया है कि यहाँ पर नर्व्स कौन से पार्ट्स के साथ मूव करती हैं, वॉलेंट्री पार्ट्स के साथ या इनवॉलेंट्री पार्ट्स के साथ। दैट इज मेकिंग आर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक neural system. Somatic neural system is comprising of all the nerves जो कि हमारे voluntary parts के साथ डील करती हैं, the nerves which are moving with the skeletal system, or simply saying voluntary parts. सो जो भी पार्ट्स हमारी विश के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विश। उन पार्ट्स में जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं दे आर द पार्ट ऑफ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच हैं एंड दीज आर नॉट आर अंडर कंट्रोल, मीन्स इनवॉलेंट्री पार्ट्स हैं और यू कैन से दे आर अटैच्ड विद द इंटरनल organs, involuntary parts के साथ जो अटैच्ड हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, हमने बहुत बार हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी वी हैव सीन दैट दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज हैविंग सिंपैथेटिक एंड parasympathetic nervous system. We will talk about this sympathetic and parasympathetic nervous system in detail later on. Remember one thing, just these are going to function antagonist to each other. ये sympathetic parasympathetic nervous system हमेशा एक दूसरे के opposite function करता है. If one is going to accelerate one function, suppose one is responsible to accelerate our heartbeat, then second is going to decrease its rate. So they are functioning opposite to each other. So this is how we have classified the neural system of human. Now we are going to talk about the detailed structure of a neuron. So we are going to study about neuron. How we can define this neuron? I already told you कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो एक स्पेशलाइज सेल से मिलके बना है और इन स्पेशलाइज सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं. सी इन सम लोअर क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. मीन्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी है एंड दिस सेल इज परफॉर्मिंग ऑल द
functions. Exactly same way हमारा जो न्यूरल सिस्टम है that is made up of various neurons. वो किससे मिलके बना है? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलके बना है. और फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये न्यूरॉन्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जितना भी मैसेज का ट्रांसमिशन है दैट इज डन बाय दीज neurons. So what we are going to call these neurons? These neurons are acting as structural and functional unit of our neural system. ये न्यूरॉन हमारे न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं. अगर हम इन न्यूरॉन्स की बात करते हैं और वी कैन सिंपली से देम एज नर्व सेल्स. दीज न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स. दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं. इनकी लेंथ कितनी हो सकती है? मे बी द लेंथ ऑफ आवर बॉडी. जितनी हमारी बॉडी की लेंथ है उतनी ही लेंथ किसी नर्व सेल की हो सकती है. इफ वी टॉक अबाउट द नंबर, हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट? 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. और इन 100 बिलियन में से 90% आर प्रेजेंट इन ब्रेन. सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है. हमारी बॉडी की बाकी सेल्स के कंपैरिजन में दीज न्यूरॉन्स आर डिफरेंट. वाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज हमने क्या देखा है कि हमारी बॉडी की जो बाकी सेल्स होती हैं व्हाट दे डू, दे स्टार्ट डिवाइड देम सेल्फ. एक सेल 2 में डिवाइड होती है, 2 सेल 4 में डिवाइड होती है. सो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड. बट जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो कैसी सेल्स हैं? वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं. नॉन डिवाइडिंग सेल्स का क्या मतलब है यहाँ पर? व्हेन अ बेबी इज बोर्न, उस टाइम पे उसकी बॉडी में जितने न्यूरॉन्स हैं, these neurons are continuing in his or her life. मीन्स आगे नंबर इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि डिवाइड नहीं होंगे तो नंबर इंक्रीज नहीं होगा. सो दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स. और क्योंकि डिवीजन नहीं करती हैं तो ये हमेशा सेल साइकिल के एक ही फेज में प्रेजेंट होंगी, आगे फर्दर फेज में एंटर नहीं करती है. सो दे आर प्रेजेंट और दे आर लोक्ड एट द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल. ये हमेशा सेल साइकिल के एक ही फेज में अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं, दैट इज इंटरफेज. आगे माइटोसिस में मूव ऑन नहीं करती है. रीजन? बिकॉज वो डिवाइड नहीं होने वाली हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट न्यूरॉन. अगर हम फर्दर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 पार्ट्स. मेनली 3 पार्ट्स. One is known as cytone और we also call it as cell body. जो दूसरा मेजर पार्ट है न्यूरॉन का that is dendrites और dendron and the third one is axon. So we are going to talk about cell body. What is present in the cell body? What are the functions performed by the cell body? Dendrites क्या होते हैं, क्या present है, क्या function करते हैं? And exactly same, what are axons and what are the functions performed by axon? So let's talk about the structure of a neuron. The first part of the neuron which we need to talk about is cytone or you can say cell body. First part is cell body. So if we see, size vary करता है cell body का, but almost on an average it is showing a diameter of nearly 13.5 micrometer in diameter and shape is varying. इरेगुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है. सो वेरियस शेप्स कैन बी acquired by this cell body. There can be various shapes.
इफ़ वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब सेल बॉडी, तो सेल बॉडी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती हैं. मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट अ नॉर्मल टिपिकल सेल, दैट मीन्स आई रिमेंबर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए किसी सेल में, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए सेंटर में. This is how can I define a cell. Exactly same way this cell body is also having all these structures. Means neuron की जो cell body है that is having cell membrane, cytoplasm present है इस cell membrane के अंदर, and there is presence of a prominent nucleus is present. So it is behaving as the rest of the cells of the body. अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं then this cytoplasm is having all the organelles, जैसे कि we are having Golgi bodies, mitochondria is there, a rough endoplasmic reticulum is there. So like this all the cell organelles are present in its cytoplasm. So यहाँ पर साइटोप्लाज्म में present हैं mitochondria, Golgi bodies, rough endoplasmic reticulum, ribosomes are there. So all the cell organelles are there, and other than cell organelles, इनके अलावा क्या specific features हैं? Neurofibrils are there, neurotubules are present, and Nissl granules are present. अगर हम ऊपर में इन सब चीज़ों को देखते हैं, these are going to be present in all the cells of the body. But if we talk about neurofibrils, neurotubules and Nissl granules, these are not present in other cells of our body. That means I can say that these are presence of these structures are the characteristic feature of nerve cells. So characteristic feature of nerve cells is presence of neurofibrils, neurotubules and Nissl granules. So let's talk about the function performed by these structures. अगर हम neurofibrils की बात करते हैं, these neurofibrils they are involved in the transmission of message. न्यूरोफिब्रिल्स किस में इन्वॉल्व हैं? मैसेज के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं. सो फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्यूब्यूल्स, दे आर अगेन मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? सेल बॉडी और यू कैन से न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो देयर फंक्शन विल बी मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज Nissl's granule. What these Nissl granules are? ये Nissl granules rough endoplasmic reticulum के small irregular parts हैं. These are small parts of this rough endoplasmic reticulum. And we know that rough endoplasmic reticulum के surface पर क्या present होते हैं? Ribosomes present होते हैं. And these ribosomes are involved in the process of protein synthesis. So Nissl granules का भी क्या function होगा? These Nissl granules are involved in the synthesis of proteins. So Nissl granules क्या हैं? They are irregular structures of RER involved in protein synthesis. So सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है? न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और Nissl granules present हैं. These are important about cell body. अब इस सेल बॉडी से अराइज होता है, कुछ प्रोसेसेस अराइज होते हैं. एंड दीज प्रोसेसेस आर नोन एज न्यूराइट्स.
So the processes that are arising from cell body, और उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स बोलते हैं। अब जब हम इन प्रोसेसेस को देखते हैं, वी आर गोइंग टू विजुअलाइज टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस। हमें यहाँ दो तरह के प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, वन इज नोन एज डेंड्राइट्स और दूसरे को हम एक्सोन बोलते हैं। पहले हम डेंड्राइट्स की बात करते हैं। डेंड्राइट्स सेल बॉडी से अराइज होते हैं एंड दीज आर शॉर्ट, ये छोटे हैं, नंबर में ज़्यादा हैं, ब्रांच्ड हैं। सो दीज आर प्रोसेसेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी, दीज आर शॉर्ट, more in number and branched. Just like cell body, these are also having neurofibrils, neurotubules and nasal granules. So nasal granules are also present. Cell body की तरह ही इनमें भी न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं और नीसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये डेंड्राइट्स फंक्शन क्या करते हैं, ये डेंड्राइट्स सबसे पहले मैसेज को रिसीव करते हैं। सपोज अगर मेरी स्किन के पास कोई भी स्टिमुलस आया है तो वहाँ के रिसेप्टर ने उस सिग्नल को एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले उस नर्व इम्पल्स को कौन रिसीव करता है, न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करता है। सो डेंड्राइट इज द स्ट्रक्चर विच इज फर्स्ट गोइंग टू रिसीव द सिग्नल इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। दूसरी चीज, ये उस नर्व इम्पल्स को, सिग्नल को कहाँ पास ऑन करता है, इट इज गोइंग टू पास दिस सिग्नल टू द सेल बॉडी। सो दिस डेंड्राइट इज पासिंग द सिग्नल टू सेल बॉडी। सो ये अपने से अवे इसको पास ऑन करता है। वी कंसिडर इट एज अ एफरेंट process. This is passing away from itself, that's why it is known as the efferent process. इसके बाद आता है the second type of neuroid जो arise होता है सेल बॉडी से, that is known as axon. Axon नंबर में सिंगल है, सिंगल axon is there, very long and unbranched, ब्रांचिंग नहीं होती है। सो लॉन्ग, सिंगल एंड अनब्रांच्ड। इफ वी टॉक अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो यहाँ पर न्यूरोफिब्रिल्स और न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स आर देयर, न्यूरोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, बट दे आर नॉट हैविंग nasal granules. Nasal granules एक्सोन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। That means एक्सोन्स आर नॉट गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सोन्स में नहीं होता है। That means they are going to be dependent on the cell body. अपनी प्रोटीन फंक्शनिंग, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और यू कैन से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द सेल बॉडी बिकॉज इन दीज दे आर नॉट हैविंग द नीसल्स ग्रैन्यूल। यहाँ पर नीसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें सेल बॉडी की, सेल बॉडी का पार्ट जहाँ से एक्सोन अराइज होता है, दैट एंड ऑफ द सेल बॉडी from where axon is arising, that part is known as axon hillock, and this is the most sensitive part. We will show all these structures in diagram. So ये axon hillock वो end है जहाँ से axon arise होता है and that is known as axon hillock. अब this axon is moving downward और जो एंड आता है एक्सोन का, जहाँ पर एक्सोन टर्मिनेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज एक्सोन टर्मिनल। और अगर हम इस एक्सोन टर्मिनल को देखें, देन दिस एक्सोन टर्मिनल इज गोइंग टू बी ब्रांच्ड। ये जाके
ब्रांच्ड हो जाता है एंड इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अनदर न्यूरॉन। जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस एक्सोनल टर्मिनल। एंड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट एक एक्सोन का एंड दूसरे एक्सोन के डेंड्राइट्स के साथ आके कॉन्टेक्ट में आता है, बट दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन देम, अ माइक्रो जंक्शन, वेरी स्मॉल गैप, और इस स्मॉल गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। सो एक्सोन टर्मिनल और अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा दैट इज साइनेप्स। तो ये जो पुराना जो एक्सोन, पिछला जो एक्सोन है, इसके टर्मिनल्स, द एक्सोन टर्मिनल्स इन दिस साइनेप्स दे आर गोइंग टू फॉर्म साइनेप्टिक नोब्स। ये एक्सोन टर्मिनल है विच आर एंडिंग इनटू, किसमें खत्म होते हैं? नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज साइनेप्टिक knob. This will be the synapse and over here comes the dendrites of the next neuron. So let's see all these structures in diagram so that we are going to understand it more clearly. So first of all, a cell body is present. This cell body is having, I told you, there is prominent nucleus that is present, proper cytoplasm is going to be present, other cell organelles will be present, neurofibrils, neurotubules are present, and there will be presence of Nissls granules. Nissl granules are present. So this is the cell body, dendrites, nucleus, Nissls granules, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस के बाहर एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकैरियोन। अगर हम इस दिस साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, इट इज बिकॉज ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, इट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म सिंपली। नाउ दिस पार्ट, दिस इज द एक्सोन, लॉन्ग न्यूराइट दैट इज अराइजिंग, दिस पार्ट इज नोन एज एक्सोन हिलॉक, बिकॉज यहां से क्या अराइज होता है? एक्सोन अराइज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्सोन। When we are talking about this axon, so बहुत सारे जो एक्सोन्स हैं वहाँ पर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। देयर इज अ इंसुलेटिंग कवरिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस एक्सोन एंड दैट इंसुलेटिंग कवरिंग is known as myelin sheath. This is how a insulating covering is present and this is known as myelin sheath. This myelin sheath is secreted by cells known as Schwann cells. यहाँ पर कुछ cells present होती हैं, Schwann cells, and these Schwann cells they are responsible for the formation of this myelin sheath. ये माइलिन शीथ क्या काम करती है? इंसुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। दे आर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू द एक्सोन
and later on this axon is going to terminate. I told you यहाँ पर branching होती है और termination कैसे होगा, in form of knobs. These are synaptic knobs. So this is axon terminal and synaptic knob. Later on we will see कि what happens at the synaptic knob. अब जो श्वान जो माइलिन शीथ है वहाँ पर कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है. दैट जंक्शन इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, माइलिन शीथ नहीं होती है. देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवियर. रेनवियर वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तब हम देखेंगे कि इस नोड ऑफ रेनवियर का क्या फंक्शन होता है. सो सिंपली यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के एक्सोन्स हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है. हम उन्हें क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स. जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हैं, ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं. और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, मीन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है. उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स बोलते हैं. एंड दीज नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन आर नर्वस सिस्टम. जैसे कि हमने पढ़ा था हमारा सोमेटिक और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स. सो अगर हम कंडक्शन की ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं देन वी आर गेटिंग अ फास्ट कंडक्शन सिस्टम इन माइलिनेटेड एक्सोन. और जो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स है वहाँ पर स्लो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होता है. नाउ देयर इज सम ब्रांचेस ऑल्सो. एक्सोन से कुछ ब्रांचेस अराइज होते हैं. सपोज दिस पार्ट इज गिविंग राइज टू अनदर एक्सोन दैट इज कोलेटरल एक्सिस. This is forming the collateral axis. So this is how a neuron is arising. We will going to talk about more about the neuron in our next class.